Assalamu alaikum, I'm Anar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to 9 most powerful people in Pakistan. پاکستان کے سب سے پاورفل افراد کون ہے یہ 9 سب سے پاورفل افراد؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ ویڈیو دیکھنی ہے. So let's start the video. 1, 2, 3. پاکستانی تاریخ کے 9 سب سے بڑے انڈر ورلڈ ڈان. ٹاپ 10 انڈر ورلڈ ڈانز ان پاکستان. نمبر 9 فاروق کھوکھر. ٹاک شاک چینل کے معزز دوستو، پاکستان کے سب سے بڑے مافیاز کی لسٹ پر نمبر 9 پر فاروق کھوکھر آتا ہے. یہ پاکستان کے مشہور ڈان تاجی کھوکھر کا بیٹا ہے. پاکستان میں اس کی وجہ شہرت اس کا شاہانہ طرز زندگی ہے جو اس کے باپ کے پیسے پر چلتا ہے. اس کے باپ کا بنایا ہوا ڈیرا تاجی کھوکھر اسلام آباد ایئرپورٹ کی رن وے کے ساتھ ہے اور ہمیشہ سے یہاں سے آپریٹ ہونے والی فلائٹس کے لیے ایک رسک ہے. خود اس نے بے شک زندگی میں ایک چڑیا نہ ماری ہو، لیکن یہ اپنے باپ کے پالے ہوئے گنڈوں کی فوج کے سر پر کافی پاورفل بن گیا ہے. یہ جہاں جاتا ہے کم سے کم 10 لینڈ کروزر ساتھ لے کے جاتا ہے. فاروق کھوکھر نے کھوکھر 333 کے نام سے ایک گروپ بھی بنا رکھا ہے جسے یہ کھوکھر فورس کہتا ہے. چونکہ اس کا باپ ایک مشہور زمانہ ڈان ہے اور اس کا چچا حاجی نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کا ایک سیاست دان ہے، اس وجہ سے فاروق کھوکھر لمبے لمبے بال رکھ کر یہاں وہاں گھومتا نظر آتا ہے اور اگر اریسٹ ہو بھی جائے تو یہ چھوٹ جاتا ہے. دوستو، آپ کے مطابق فاروق کھوکھر حقیقی زندگی کا کوئی بدماش ہے یا یہ صرف فیس بک کا بدماش ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں. نمبر 8 جگا گجر. دوستو، آپ نے پاکستان میں جگا ٹیکس کا نام تو سنا ہی ہوگا. جگا ٹیکس کی وجہ شہرت جگا گجر تھا جو کہ 60 کی دہائی میں لاہور کی بکر منڈی میں کسائیوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. جگے کا اصل نام چودھری محمد شریف گجر تھا اور یہ چبرچی لاہور کا رہنے والا تھا. جگا بہت ذہین انسان تھا. اس نے چند لوگوں کے قتل کے بعد لاہور شہر میں اپنا خوف بٹھا لیا اور جگا ٹیکس کی شکل میں اپنی خود کی ایک انڈسٹری بنا لی. دوسرے بدماشوں کی طرح لوگوں کو مار کر ان کی جائیداد پر قبضے کرنے کے بجائے یہ ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا. اگر ٹیکس نہیں دیا تو پھر انجام برا ہوگا. یہ بکر منڈی کے کسائیوں سے فی بکرا 1 روپیہ ٹیکس لیا کرتا تھا جو اس دور میں آج کے 1000 روپے سے بھی زیادہ ہے. لاہوری اس سے بہت تنگ تھے اور وہ روتے ہوئے ایوب خان کے پاس گئے جنہوں نے قانون سازی کرتے ہوئے ہنڈا ایکٹ بنایا جس کے مطابق کوئی آدمی بھی بدماشی کر کے کسی سے ٹیکس نہیں لے سکتا. جگے نے ہنڈا ایکٹ ماننے سے انکار کیا اور ہنڈا ایکٹ کا پہلا شکار جگا گجر ہوا جسے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. نمبر 7 گوگی بھٹ. دوستو، نمبر 7 پہ موجود گوگی بھٹ لاہور کا ایک مشہور گینگسٹر ہے. گوگی بھٹ کا اصل نام خواجہ عقیل بھٹ ہے. 1960 میں گنڈا ایکٹ آنے کے بعد بڑی حد تک پنجاب سے بدماش اور گنڈے ختم ہو گئے مگر خالص لاہوری گنڈا صرف ایک ہی بچا، گوگی بھٹ. پچھلے کچھ سالوں میں حکومتیں آتی جاتی رہیں مگر گوگی بھٹ آج بھی یہی موجود ہے. وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گوال منڈی لاہور کا یہ گینگسٹر بہت ویل کنیکٹڈ ہے. گوگی بھٹ نے چھوٹی عمر میں ہی گوال منڈی لاہور میں بتہ خوری سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا. پھر انہوں نے کرائے پر قتل اور لینڈ گریبنگ میں بھی اپنا نام کمایا. انہیں سب سے زیادہ شہرت ٹیپو ٹرکا والا کے قتل سے ملی جسے لاہور ایئرپورٹ کے اندر جا کر مار دیا گیا. گوگی بھٹ نے دنیا بھر میں بہت سے پاورفل دوست بنائے ہیں اور جب بھی ان پر کوئی برا وقت آتا ہے یہی لوگ انہیں بچا لیتے ہیں. نمبر 6 ٹیپو ٹرکا والا. دوستو، نمبر 6 پر ہماری لسٹ پر ٹیپو ٹرکا والا آتا ہے اور ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے ٹاک شاک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں. دوستو، گوگی بھٹ سے پہلے جس بندے نے پنجاب کے انڈر ورلڈ پر حکمرانی کی وہ تھا ٹیپو ٹرکا والا. یہ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ کا رہائشی تھا اور بلا ٹرکا والا کا بیٹا تھا. بلا ٹرکا والا کو ان کے دشمنوں نے 1994 میں قتل کر دیا تھا. ٹیپو ٹرکا والا ایک دیسی پہلوان تھا اور اس نے اپنے باپ کی جگہ لیتے ہی پورا لاہور شہر ہلا ڈالا. اس کے ارد گرد ہر وقت گارڈز کی ایک فوج رہتی تھی اور ان کی صبح اپنے پالتو 10 ببر شیروں کو کھانا کھلانے سے ہوتی تھی. ان کے چاہنے والوں میں بھارتی اداکارہ ارملا بھی شامل تھی جو انہیں ملنے لاہور بھی آئیں. گوال منڈی لاہور کے گوگی بھٹ سے ٹیپو ٹرکا والا کا انڈر ورلڈ میں پھیلتا ہوا اثر و رسوخ برداشت نہ ہوتا تھا. ان کے ایک کرندے خرم بٹ نے دبئی سے واپسی پر ٹیپو ٹرکا والوں کو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں مار ڈالا. نمبر 5 عابد باکسر. دوستو، ہماری لسٹ پر 5ویں نمبر پر موجود عابد باکسر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی وجہ شہرت میاں شہباز شریف کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہونا تھی. 90 کی دہائی میں یہ پنجاب پولیس میں نوکری کرتے تھے اور انہیں یہ نوکری سپورٹس کوٹے پر ملی کیونکہ یہ ایک باکسر تھے. عابد باکسر کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے. یہ اپنے انکاؤنٹرز کی وجہ سے مشہور ہوئے اور اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف کی نظر ان پر پڑی. شہباز شریف نے عابد باکسر کو ایک عرصے تک اپنے ذاتی دشمنوں کو فرضی انکاؤنٹرز میں مارنے کے لیے استعمال کیا. یہ وہ دور تھا جب پنجاب میں عابد باکسر کا نام ڈر کی علامت سمجھا جاتا تھا.
कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भाप गया था कि अब शरीफ खानदान इसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान अब लाया गया है और इन पर केसेस चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने इनसे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की तड़प ने इसे फिर नाचने पर लगा दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो इन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस को पकड़कर इसकी टिंड कर डाली। नंबर 4, उज़ैर बलोच। टॉक शो के दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था। यहाँ इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया और इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिला। फिर इसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने इनके सर तन से जुदा करके इनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और इनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी और इसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। इसे एहसास हुआ कि जितना इसको इस्तेमाल कर लिया गया है, अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इसकी गवाही देने से जरदारी खानदान को कुछ फर्क पड़ेगा? कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, नंबर 3 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम इन पर है, इतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर, इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबका फिक्र को लीड करते हैं जो कि बरे सकीर पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेसेस हैं और आज भी अपने आप को महाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। आज बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की कमान संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी इनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीनें खाली करवा कर वहाँ बैरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो इस जादू की छड़ी का नाम है ताजी खोखर। हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर फर्रुख खोखर का बाप ताजी खोखर आता है। इम्तियाज खोखर उर्फ ताजी खोखर पिंडी के मशहूर जमाना एक डॉन है जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोखर की ढाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के भी बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फर्रुख खोखर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकले तो 10 लैंड क्रूजर्स में निकलते हैं। पाकिस्तान में अगर इन्होंने ट्रैवल कर रहा हो तो इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहराए अरब, शिपिंग के खुफिया रूट्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे और इन्होंने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि एक महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँच जाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर इन्होंने इन्हें भी अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर
नुक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये साइट आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल कर ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने इस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सैयद आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन है और इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टॉक शॉक का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे जल्द एक और वीडियो में मुलाकात होती है। ये थे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल अफराद जो कि ज़्यादातर डॉन्स और गैंगस्टर्स हैं, और उनमें से कुछ हैं जो अपनी मर्ज़ी से गैंगस्टर बने हैं, और एक मेरा ख़्याल है कि एक जो है जिनका ज़िक्र हुआ है कि वो मजबूरी में गैंगस्टर बने हैं क्योंकि उनके अब्बू के साथ बुरा हुआ था और इंसाफ नहीं मिला कानून से, तो वो उन्होंने अपना वो बनाया है और गैंगस्टर बन गए। बाकी मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर ये जो गैंगस्टर्स हैं वो उनका कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं। ये बिल्कुल भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। और एक है अल्ताफ़ हुसैन जो कि बहुत मशहूर है कराची में, और कराची के लोग बहुत जो है उनको इज़्ज़त देते हैं और पसंद करते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी जो है इन्होंने इतने सारे बुरे काम किए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि वो जो है वो MQM की बहुत बड़ी शख्सियत है, और कराची में लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और कुछ पता नहीं क्या करके जो है वो बैन हुए हैं और अभी UK में रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्होंने ये सारे बुरे काम किए हैं। उसके अलावा जग्गा टैक्स, मैंने बहुत सुना है जग्गा टैक्स, तो आज जानने को मिला है कि जग्गा टैक्स जो इतना मशहूर जुमला है वो उनकी क्या स्टोरी है और वो कौन थे ये, तो ये सब इस वीडियो में जानने को मिला है। नॉर्मली हम हीरोज़ और बहादुर लोगों पर जो वीडियोस बनाते हैं, बनी हुई होती है, उन पर रिएक्शन करते हैं तो उनके लिए दुआएं निकलती है। ऐसे लोगों के लिए पता नहीं दिल से क्या निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला हिदायत दें और जल्द से जल्द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है करप्शन ख़त्म हो जाए और ऐसे लोगों से मतलब ताल्लुक़ जो होता है वो ख़त्म हो जाए और नेक लोग पॉलिटिक्स में शामिल हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।